Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to everyone. And inshallah, in today's class, we're going to talk about matching category, clear? Uh, in our previous lectures, we studied completion task. Then yesterday, we started identification task. We just only few questions clear, but let me also start your complete that of your matching task, and the remaining questions we will keep studying that. First of all, you need to identify the difference between three tasks. Completion, the first one we have already studied. Completion task clear or category is about fill in the blanks. Then yesterday we talked about identification. Identification deals with facts, if you remember, Claire. And then the last one, that's your matching category. Uh, Matching category, the last one. This is the most important category in IELTS reading test. And majority of the questions you will receive from matching category. Like in exams nowadays, Claire, majority of the questions you may expect that they are from matching category. So in matching category, we will study few types of questions. Number one, matching headings. Matching headings, that's the first one. Then number two, matching information type of questions. Number three, matching features. Number four, matching sentence endings. And number five, then we will talk about your MCQs, the last one. So we may study एक्सक्यूज five मी types सर of questions. Yes, please. सर ये आइडेंटिफिकेशन टास्क में तो हमने सिर्फ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन किया था और ये यस नो वाले और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तो हमने नहीं किए थे। मैम अभी मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले कि we will study them. You didn't hear me properly, I think. I talked about that some of the question even we are left with a completion task. Claire, we didn't even complete completion. Let me introduce all three categories that you must know about the difference between all categories first. तो उसमें जो questions रहते हैं we will study them, okay? ओके सर। Don't you worry. I know what to teach first. मुझे हमेशा याद होता है कि मैंने कब किस टाइम क्या पढ़ाना होता है, ठीक है? डोंट यू वरी। मुझे याद रहता है एंड आई नेवर फॉरगेट। मुझे अभी भी याद है कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। कंप्लीशन में हमने जो पढ़े, द फर्स्ट वन नोट कंप्लीशन हमने पढ़ा था, टेबल कंप्लीशन हमने पढ़े, एंड वी हैव स्टडीड समरी। क्लियर? तो डोंट यू वरी, मुझे याद है कि क्या क्या हमने पढ़े। अब इसमें भी मतलब ऑलरेडी वी आर लेफ्ट विथ थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इसमें हमने सिर्फ ट्रू फॉल्स पढ़ा, द सेकेंड वन। So rest three are remaining yet. And now today we want to talk about this category. अच्छा जी, आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखने हैं आज, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, because we talk about your matching category, and matching category I would say is the most important category. मैचिंग थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है? It's a bit different from your completion task and as well as from your the first one, clear, completion and identification. Matching कैसे different है? I'm going to teach you. फर्क क्या है और हमने किस चीज़ का मतलब ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है? और आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में जो यू विल एक्सपेक्ट क्लियर, दे आर फ्रॉम मैचिंग इंफॉर्मेशन। मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिवाइड देम इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है? दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर दूंगा। नंबर वन, जो हमारे पास है मैचिंग हेडिंग्स, कैटेगरी नंबर वन। मतलब फर्दर मैं मैचिंग कैटेगरी को दो कैटेगरीज में डिवाइड करने वाला हूँ। कैटेगरी नंबर वन, विदाउट विदाउट साइन पोस्टिंग वर्ड्स। एंड विदाउट साइन पोस्टिंग वर्ड्स हमारे पास जो है वो दो है। नंबर वन, मैचिंग हेडिंग्स, मैं समझाऊंगा साथ साथ, ठीक है? मैचिंग हेडिंग, एंड नंबर टू दैट इज मैचिंग इंफॉर्मेशन। जो दूसरा कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी, दैट इज कॉल्ड विथ साइन पोस्टिंग वर्ड्स। अब इसमें जो हमारे पास है, नंबर वन दैट इज कॉल्ड मैचिंग फीचर,
फीचर्स का मतलब है मैचिंग नेम्स, इक्वल सेम नेम है, मैचिंग नेम्स और मैचिंग फीचर्स। एंड जो दूसरा हमारे पास है दैट्स कॉल्ड मैचिंग सेंटेंस एंडिंग। The second one is called matching sentence endings. Many matching type of questions go. I've divided them into two, clear. And the third one, if you want to put that, there are MCQs. दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिए। पहला वाला without signposting words, these two type of questions, and the last one, these three are with signposting. अच्छा, what I mean by signposting, अच्छा जी, मैंने ये मेरे अपने स्ट्रेटजीज है, ठीक है ना। लाइक दी स्ट्रेटजीज आई हैव डेवलप्ड माई ओन। मैं आप लोग के साथ अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रेटजीज शेयर करते रहता हूँ। मैं इस चीज़ का मतलब वो नहीं हूँ कि ये क्या है क्या नहीं है। इट रियली वर्क्स फॉर द स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई शेयर विद यू पीपल एंड आई टीच देम द सेम वे, एंड स्टूडेंट्स दे अचीव 9 out of 9 इन दैट। अब मेरी बात सुने, मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये मुश्किल क्यों लगता है? सबसे पहले ये सवाल है। अगर आप लोग मतलब अगर आपके पास कोई आसपास नहीं है, सो यू मे टर्न ऑन योर माइक्स, सो वी मे कम्युनिकेट प्रॉपरली, क्लियर। आप लोग को जैसे मैंने कहा कि मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल क्यों लग रहा है, वी विल स्पेंड अ बिट मोर टाइम ऑन मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वजह क्या है कि मतलब स्टूडेंट्स दे डोंट परफॉर्म वेल इन मैचिंग इंफॉर्मेशन? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू यू पीपल, आपके ख्याल में क्यों थोड़ा मुश्किल है मैचिंग इंफॉर्मेशन? वजह क्या है? Anyone who shares, like anyone who wants to share his idea, your opinion, सर और रिलेटेड उसमें जो एनवायरमेंट हमसे वो पूछा one by जाता है one, ना क्वेश्चन में, one by one, one वो by one। हमें जी बताइए। Number one, who wants to talk? Yuna? Yes, me. Okay, okay, Sadia, talk. Yeah, I think we are not paraphrasing properly. We are not getting the idea from Okay, the paragraph and we are ठीक है, not matching it. ठीक है, सही है। Anybody else? Anyone else? Can I say something? Yes, please. Anfal? Uh, Sir, uh, as much as I know, it deals with the meaning uh, at the least amount, but we can say that 70% it works with an idea and matching category. So we have to know about the meaning of each and every word. Okay, ठीक है। अच्छा, मेरी Yes, बात sir. सुनिए, ठीक है, मेरे साथ रहे, ठीक है, मेरे साथ रहे, एंड यू पीपल कैन डिस्कस विद मी। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये जो पहले दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे, मैचिंग इंफॉर्मेशन एंड मैचिंग हेरिंग, इसमें हमारे पास कोई साइन पोस्टिंग वर्ड नहीं होता। अब साइन पोस्टिंग वर्ड होता क्यों नहीं है? देखिए, वी डील विद टू थिंग्स। मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में जितने भी हमारे पास मैचिंग क्वेश्चन है, वी डील विद टू पार्ट्स। पार्ट नंबर वन, स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स। एंड दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है? पैसेजेस। पैसेज मतलब पैसेज में क्या? पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स। अगर आप इन दो ऑप्शंस पे आप फोकस करें, मैचिंग हेरिंग एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैंने यहां पे लिखा है कि नो साइन पोस्टिंग वर्ड। मैंने क्या लिखा है? नो साइन पोस्टिंग वर्ड। अब नो साइन पोस्टिंग वर्ड का क्या मतलब है? मेरी आप थोड़ा गौर से सुने, ठीक है, बातों को। साइन पोस्टिंग वर्ड, मेरे पास दो तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। नंबर वन, साइन पोस्टिंग वर्ड्स। सवाल में मेरे पास दो तरह के वर्ड्स हो सकते हैं। एंड नंबर टू, कीवर्ड्स। हर एक सवाल में आपके पास दो तरह के वर्ड्स आ सकते हैं। नंबर वन, साइन पोस्टिंग वर्ड्स एंड कीवर्ड्स। साइन पोस्टिंग वर्ड का मतलब यह है, मैं जो कहता हूं बच्चों को, कि साइन पोस्ट वर्ड से मेरा यह मतलब है कि एग्जैक्ट वर्ड होगा, एग्जैक्ट। लाइक एग्जैक्ट वर्ड से मेरा मतलब क्या है? कि जो स्टेटमेंट है, इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हो फरीद साफी, राइट, तो पैराग्राफ में भी आप जाके वहां पर आपको मिलेगा फरीद साफी। ये मेरा है साइन पोस्टिंग वर्ड। अगर आपको स्टेटमेंट में मिल रहा है 1957, 1957, तो अगर आप पैराग्राफ में चले जाए तो वहां पर भी आपको वही चीज मिलेगा, 1957। तो ये साइन पोस्टिंग वर्ड्स दे आर यूज्ड एज क्लूज। मतलब इसका मतलब क्या है? क्लूज है, दे आर क्या? क्लूज। क्लूज मतलब ये है कि मतलब आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से पैराग्राफ से मेरा जवाब आ सकता है। अब यहां पे मैंने लिखा है कि इन दोनों में विदाउट साइन पोस्टिंग वर्ड्स है। इसमें कीवर्ड से मेरा मुराद क्या है? कीवर्ड से मेरा मतलब यह है कि फोर वर्ड्स हमारे पास कीज हो सकते हैं। कीवर्ड्स, वर्ब्स, नाउन्स,
एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये हमारे पास कीवर्ड्स है। कीवर्ड का मतलब क्या है कि यू कैन एक्सपेक्ट सिनोनिम। प्रैक्टिकली हम फिर बाद में पढ़ेंगे, अब थोड़ी चीजों को समझे, ठीक है। मतलब फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल, इफ दे हैव यूज व्हाट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नाउन है ना। तो आप पैसेज में अगर चले जाए तो आपको एंटरटेनमेंट की जगह यू मे फाइंड आउट फॉर एग्जाम्पल अम्यूजमेंट, ठीक है। सो यू मे फाइंड आउट व्हाट, अम्यूजमेंट। तो अब अगर यहां पे आप देखें तो व्हाट वी हैव, यू मे फाइंड द करेक्ट synonym for the exact word, clear। आपको वही चीज मिलेगा। तो ये हमारे पास कीवर्ड है। लेकिन साइन पोस्टिंग वर्ड के लिए मैंने क्या कहा कि यू विल फाइंड आउट एग्जैक्ट वर्ड, बिल्कुल हूबहू वही वर्ड आपको मिलेगा। तो अब एग्जैक्ट वर्ड से मेरा मतलब क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ देयर इज फरीसाफी, तो फरीसाफी। अब यहां पे मसला क्या है कि मैचिंग हेडिंग और मैचिंग इंफॉर्मेशन, इसमें हमारे पास साइन पोस्टिंग वर्ड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते हमारे पास साइन पोस्टिंग वर्ड? क्यों? क्योंकि हमने जो चीज को, जिस चीज को मिलाना है, लाइक वी वांट टू मैच अ स्टेटमेंट नहीं नहीं जी, मेरी बात सुने। वी मैच स्टेटमेंट विद अ पैराग्राफ, मेरी बात सुने। Paragraph. हम, मुझे ये एक बात बताइए, हम साइन पोस्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या है कि हम एक सही पैराग्राफ तक पहुंचे, जल्दी हम अपने सही पैराग्राफ तक पहुंचे। एम आई राइट? मेरी बात Yeah. सुने। हर एक Yes, बंदा sir. मेरी बात को गौर से समझे, Yes, ठीक sir. है ना। ये टाइप मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर वेरी इजी, ये इतने आसान है, लेकिन चीज को समझने की कोशिश करें। साइन पोस्टिंग वर्ड्स का मतलब ये है, साइन पोस्ट कि मैं मतलब जल्दी से, मेरे पास 8 पैराग्राफ है, 10 पैराग्राफ से, तो मैं फरीसाफी को देख के जल्दी से सर्च करूंगा ना, सही पैराग्राफ तक पहुंच सकता हूं ना। आई कैन रीच क्वाइट इजीली। एम आई राइट? Yes, Yeah. sir. तो मतलब साइन पोस्टिंग वर्ड का Yes, sir. काम क्या है? साइन पोस्टिंग वर्ड का काम यह है कि आपको सही पैराग्राफ तक बहुत कम वक्त में वहां पे पहुंचा दे। लेकिन मैंने Yeah. क्या कहा कि हमारे पास दो टाइप क्वेश्चन है, कि जो है हमारे पास मैचिंग हेडिंग एंड मैचिंग इंफॉर्मेशन, उसमें हमारे पास साइन पोस्टिंग वर्ड नहीं है। साइन पोस्टिंग वर्ड्स क्यों नहीं Yes. है? इसलिए नहीं है कि भाई वहां पर हमने मैच जो करना है, हमने जिस चीज को मैच करना है, हमने मैच करना है स्टेटमेंट को पैराग्राफ के साथ। अगर हमारे पास वहां पे मैचिंग, हमारे पास वहां पे साइन पोस्टिंग वर्ड होता, तो भाई हम तो इजीली अपने पैराग्राफ को फाइंड आउट कर देते। Yeah. समझ रहे हैं आप Yes, लोग? sir. तो वहां पे इसलिए हमारे पास कोई क्लूज नहीं मिल रहा है हमें उस पैराग्राफ में। अगर मैचिंग इंफॉर्मेशन हो या मैचिंग हमारे पास कौन सा हो, मैचिंग हेडिंग हो, इन दोनों में हमारे पास क्लूज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमने, क्यों? क्योंकि हमने स्टेटमेंट के लिए पूरा पैराग्राफ ढूंढना है। पूरे जी सर. पैराग्राफ के हमने हमने पूरे पैराग्राफ के साथ, मतलब ये 5 स्टेटमेंट्स है, ये एक पैराग्राफ है, तो ये एक स्टेटमेंट मैंने ये पूरे पैराग्राफ के साथ मैच करना है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट हैव एनी क्लूज। सब Science. बाकी Yes. जो 3 है, बाकी जो मैचिंग फीचर है, तो इसमें क्लूज है। मतलब क्योंकि मैंने वहां पे क्लूज क्यों है? क्योंकि मैंने पैराग्राफ को तो नहीं मैच करना, मैंने नेम के साथ वहां पे मैच करना है। या मैचिंग Yes, सेंटेंस sir. एंडिंग है, वहां पे क्लूज है, एमसीक्यूज में क्लूज है। क्योंकि मैं सही पैराग्राफ तक डायरेक्टली पहुंच सकता हूं, क्योंकि मैंने पैराग्राफ को नहीं मैच करना, मैंने पैराग्राफ के एक सेंटेंस को मिलाना है, पैराग्राफ से मिलाना है। अब तो मैंने पैराग्राफ, पूरे पैसेज में पैराग्राफ से मैंने स्टेटमेंट को मिलाना है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी क्लूज देयर। सबसे पहले ये चीज तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल में। Yes, समझ sir. रहे? Sir, I जी, have one question. यस प्लीज। Like without signposting words, या we have to make the statement with the paragraph. Yeah. या So how we know that we are going to correct or not? मेरी बात तो Like how सुने, we? आप लोग थोड़ा वेट करें, Okay. मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। दिस माई प्रॉमिस, आई विल क्लियर यू ऑल। Okay, डोंट बी sir. वरी। इतने अगर आप बैठ रहे हो मुझसे पढ़ रहे, तो इज माई प्रॉमिस दैट आई विल मेक श्योर दैट एवरीबडी इज क्लियर नाउ। तो इन दो चीजों की तो समझ आ गई आप लोग को, डिफरेंस मतलब साइन पोस्टिंग विदाउट साइन पोस्टिंग की समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? अच्छा, मैं Yes, आप लोग sir. को अभी समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैचिंग इंफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चन जो है, मतलब ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने पहले जो पढ़ा था ना, पहली चीजों को जो हमने पहले, मतलब कौन सा वाला पढ़ा, कंप्लीशन टास्क, फिल इन द ब्लैंक्स। सो फिल इन द ब्लैंक्स में हमने किस चीज के साथ डील करना था? पैराफ्रेजिंग के साथ, राइट? Yes, sir. तो फिर Yes, sir. पैराफ्रेजिंग के साथ वहां पे हमने डील किया। देखिए जी, मैं जो चीजें आप लोग को अभी बताने वाला हूं ना, आप शॉक होंगे, ठीक है। आई एम गोना शॉक यू अ बिट, और इतने मैं आसान कर दूंगा इंशाल्लाह कि आप लोग के लिए सबसे इजी, मतलब ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुने, पैराफ्रेजिंग के बारे में पहले, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जो बाकी थे, पैराफ्रेजिंग, दैट्स द फर्स्ट पार्ट, एंड आई बिलीव यस, पैराफ्रेजिंग प्लेज अ वाइटल रोल। और अगर आपको याद हो तो मैंने पैराफ्रेजिंग में कितने पॉइंट्स बताए थे कि पैराफ्रेजिंग किन चीजों का मजमुआ है?
synonym को बताया था नहीं, और प्रकार का structure sentence एक्सलेंट, synonym, yes synonym, and structure structure sentence एक्सलेंट। क्या मैं कह सकता हूँ कि मतलब सिर्फ पैराफ्रेजिंग आर synonyms? कभी भी नहीं, no sir. कभी भी It's a नहीं। combination of both एक्सलेंट। अच्छा, यहां पे पैराफ्रेजिंग मतलब कंप्लीशन में तो बिल्कुल पैराफ्रेजिंग है, fill in the blanks आर बेस्ड ऑन पैराफ्रेजिंग, राइट? वो Yeah. पैराफ्रेजिंग और जो टेक्निक्स मैंने बताए थे मतलब वहां पे वो काम कर रहे थे, एम आई राइट? yes Yes, sir sir. वो परफेक्ट है। अब मेरी बात सुने, ठीक है? यहां पर मैचिंग में भी पैराफ्रेजिंग आपके काम आएगा, ठीक है? यू विल वे सपोज टू स्टडी अबाउट पैराफ्रेजिंग पार्ट। लेकिन इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 आप लोगों ने नोट करना है कि पॉइंट, इसमें हमारे पास फैक्ट्स नहीं है। क्या नहीं है? फैक्ट्स वाला एक ही क्वेश्चन था, वो क्या था? आइडेंटिफिकेशन में दो चीजें थे हमारे पास। मेरी बात सुने, आइडेंटिफिकेशन में क्या था? उसमें यह था कि पैराफ्रेजिंग प्लस फैक्ट्स। समझ रहे आप लोग? आइडेंटिफिकेशन में क्या Yes, था sir. और Paraphrasing plus कंप्लीशन fact. में क्या था? जस्ट पैराफ्रेजिंग था। क्या था हमारे पास? जस्ट पैराफ्रेजिंग। Just अब paraphrasing. यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? पैराफ्रेजिंग प्लस कंटेक्चुअल मीनिंग। इस चीज को आप समझिए आप लोग। इस चीज को हमने क्या करना है? इसमें जो नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं अभी, वो है हमारे पास कंटेक्चुअल मीनिंग, जो पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा था। Yes. अब कंटेक्चुअल मीनिंग से मैं मतलब व्हाट एक्चुअली आई मीन बाय कंटेक्चुअल मीनिंग, इस चीज को आप थोड़ा हमें एलेबोरेट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है जी? और आप लोगों ने क्या करना है? समझना है। कंटेक्चुअल मीनिंग से मेरे ये मतलब है कि हमने पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, ये कॉमन स्ट्रेटजी मैं अगर सबसे पहले आसान बना दूं, हमने पढ़ा था जनरलाइजेशन, पढ़ा था ना? एंड yes sir स्पेसिफिकेशन पढ़ा है ना हमने, जनरलाइजेशन। तो मतलब वही Yes. जनरलाइजेशन स्पेसिफिकेशन आपका क्या है? कंटेक्चुअल मीनिंग में आता है। इसके अलावा थोड़ा एडवांस कर देता हूं मैं क्या करने वाला हूं? एडवांस। मेरी बात सुने, ठीक है? गौर से सुने एवरीबडी। पॉइंट नंबर 4, जनरलाइजेशन होगा, इसमें स्पेसिफिकेशन होगा। थर्ड पॉइंट नंबर 4, इसमें जो चीज काम आएगा आप लोगों को यहां पे, जैसे मतलब आप लोग वहां पे कर रहे थे ना कि सवाल में आपको हाउ वी कैन अचीव 9 बैंड एंड हाउ कैन वी अचीव बैंड 9 एंड आइल्स, ठीक है ना? हाउ टू अचीव बैंड 9 एंड आइल्स। अब मेरी गौर से सुने, एवरीबडी शुड लिसन टू मी केयरफुली। ये आप लोग का भी काम मैं तमाम करने वाला हूं, ठीक है? और इसके बाद मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह उसके साथ आपका बहुत चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब स्टूडेंट क्या काम कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जैसे हमने ये पहला वाला ये पोर्शन बताया ना पैराफ्रेजिंग का, वो यहां पर भी दे ट्राई टू गो एंड लुक फॉर ओनली फॉर व्हाट? फॉर द पैराफ्रेजिंग पार्ट। yes sir यहां पे वो चीज काम नहीं करेगा भाई। तो अगर ये काम नहीं Paraphrasing. कर रहा, तो मैं बता रहा हूं कि कैसे, हाउ, मतलब वहां यहां पे अचीव लिखा है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे क्या ढूंढे? अचीव के लिए सिनोनिम गेट, get get स्कोर। Yeah. ये आप लोग ये काम कर रहे थे कि नहीं? मुझे बताइए। yes sir yes yes sir sir इसके बाद ये नहीं होगा। आपने बच्चे वो पैराग्राफ कि जहां पर आपको ये एक्सप्लेन किया हो कि हाउ मेथड्स, यहां पे हाउ का मतलब क्या है? मेथड। हाउ का मतलब क्या है? मेथड। तो आप लोगों ने देखिए, मेरी बात सुने, ये मैं थोड़ा मोर फर्दर एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी ठीक है? एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। यहां पे हाउ से मतलब क्या है? मेथड। क्या है? मेथड। जिस पैराग्राफ में मेथड एक्सप्लेन किया गया हो कि अब फॉर एग्जांपल मैं वहां पे कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू improve, work hard on paraphrasing, then look at contextual meaning, and also you are supposed to clear practice on generalization and specification. अब मुझे बताइए, मेथड मैंने कितने मेथड्स बताए आपको? 3 4 4 मेथड। तो मुझे ये बताइए, वहां पे मैंने ये लिखा है कि obtain और getting और achieving कुछ जिक्र हुआ है? No. नहीं sir हुआ। please repeat this point अच्छा, यहां पे वर्ड कौन सा है? हाउ है कि नहीं? जी sir Yeah. है तो आपके माइंड में हाउ से क्या मतलब आ रहा है? मेथड आएगा कि नहीं? strategy method स्ट्रेटेजीज, Yes. टेक्निक्स आएंगे कि नहीं? तो आप लोग पहले आप लोग क्या Who is करते the थे? technique? आप लोग पहले ये करते थे कि आप यूज टू लाइक लुक एट द सिनोनिम्स, एम आई राइट? कि मतलब yes अचीव sir का सिनोनिम और हाउ। आज के बाद आपने क्या करना है? वहां पे जाके पूरा प्रॉपर मेथड देखना है। ये 4 मेथड्स आए कि नहीं? ये 3। Yes. तो ये Yes, ये sir. 3 मेथड्स का मतलब क्या है? कि अगर How? कोई ये 3 मेथड्स band इंप्रूव करे तो इसका मतलब क्या है? सो अ पैराग्राफ, ये क्या कह रहा है कि गिव मी अ पैराग्राफ दैट टॉक्स अबाउट व्हाट? हाउ टू अचीव 9 बैंड। Yes.
तो आप लोगों ने किस चीज को देखना है वहां पे? मेथड को देखना है कि नहीं पैराफ्रेजिंग को देखना है? Method, sir. एक्सेलेंट। अब मैं आपसे एक और बात, लेट मी, व्हाई स्टूडेंट्स फेल आइल्स? तो अब आप लोगों ने वहां पे क्या देखना है? Reasons. एक्सेलेंट, आप लोगों ने रीजंस देखने हैं भाई, आप लोगों ने पैराफ्रेजिंग नहीं देखना। किसने आपको कहा पैराफ्रेजिंग देखे? डू नॉट लुक एट द पैराफ्रेजिंग पार्ट। आप लोगों ने, क्योंकि यहां पे क्या है? रीजन। अब मैं Yes, यहां पे sir. कह रहा हूं, देखिए मैं यहां पे Excuse कह me, रहा sir. हूं, वेट फॉर अ वाइल। प्रॉब्लम्स क्लियर? स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस एट साफी आइल स्टूडियो। ठीक है जी। अब यहां पे क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स देखा है कि नहीं? Yes. अब Yeah. पहले आप लोग क्या काम करते थे? अब पहले क्या करते थे कि भाई मैंने प्रॉब्लम के लिए क्या ढूंढना है? सिनोनिम। कि मैं वहां पे जाकर इश्यूज इश्यूज होगा, प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है ना, चैलेंजेस होंगे, डिफिकल्टीज होंगे, तो ये चीजें नहीं चलती भाई। वहां पे आप लोग को सपोज पैराग्राफ में चले जाए, वहां पे होगा क्लासेस क्लासेस आर ओवर क्राउड आर यूजुअली ओवर crowded and clear you hardly clear you hardly find seat। तो नाउ अब मुझे ये बताए, एक प्रॉब्लम इसमें अभी क्या हुआ? अब मुझे बताए, यहां पे कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है आपको? सिनोनिम का कोई सिनोनिम है प्रॉब्लम का? No, sir. एक्सेलेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्या है? ओवर क्राउड क्या है? प्रॉब्लम Overcrowded. को रेफर कर रहे हैं कि नहीं? Overcrowded. वेरी Yes, sir. गुड, ओवर क्राउड को ये रेफर Reason. कर रहे हैं। इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. जी अब जी किसने क्वेश्चन पूछना है? सर मैं ये पूछ रही थी कि मैचिंग में हम ये चीजें देखेंगे, पैराफ्रेजिंग हो गई, कंटेक्चुअल मीनिंग हो गया, और मेथड देखना है, ये सारी चीजें। अभी मैं No. मैं प्रैक्टिस देता रहूंगा आप लोगों ने, बच्चे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उस पर फोकस करें, ठीक है ना? सही इसमें काफी बात है, अभी 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 सुनते जाए ना, अभी अभी तो मैंने शुरू किया। सही, ठीक। आप इतने लोग बैठे हुए, तो मैं यहाँ पे, अगर इफ यू पीपल ट्रस्ट मी एंड यू बिलीव इन मी, तो इसका मतलब क्या है? That you are gonna teach डेफिनेटली perfect. आई विल मेक इट इजी फॉर यू। तो जो आप लोग के पहले कंसेप्ट थे, जो थॉट्स थे, जो आपके प्रॉब्लम्स थे, तो जब तक वो मैं क्लियर ना करूं तो फिर आप लोग क्यों मेरे साथ पढ़े? ओके सर। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने। इस चीज की तो मैंने आप लोगों को थोड़ा क्लैरिटी दे दी है कि नहीं? Yes, sir. क्या आप लोगों ने मैचिंग की तरफ आप लोगों ने किस चीज का ज्यादा वो नहीं करना? पैराफ्रेजिंग को ज्यादा नहीं And देखना, synonym. मेथड को वेरी देखना। गुड। पैराफ्रेजिंग को नहीं करना, बस आप अल्लाह अल्लाह मेथड पाक आप को सबको देखना। जन्नत नसीब फरमाए कि बस मेरी जो एनर्जी है ना वो जाया नहीं हुई, ठीक है? Amen. अब इसके बाद, अब मेरी बात को सुने, ठीक है? इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, और गौर से सुने। अब एक पैराग्राफ, हमने किस चीज को मैच करना है? पैराग्राफ को मैच करना है कि नहीं? Yes, मतलब sir. स्टेटमेंट पैराग्राफ्स के साथ मैच करना होगा ना Yes, sir. मैचिंग में। अब मेरी बात सुने, यस सर। पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ जो भी पैराग्राफ हो, पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स। कितने पार्ट्स होंगे उसमें? 4. अच्छा, हमने पैराग्राफ, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं पॉइंट। अच्छा, पैराग्राफ मतलब एक पैराग्राफ जो है ना, जो भी पैरा हो, सो पैराग्राफ वो कंसिस्ट, नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, क्या होगा वहां पर? Topic sentence. टॉपिक टॉपिक सेंटेंस। सेंटेंस। पॉइंट नंबर 2 उसमें होगा एक्सप्लेनेशन, होगा कि नहीं? यस Yes, सर। Yes, sir. पॉइंट नंबर 3 उसमें होगा एग्जाम्पल, होगा कि नहीं? यस यस Yes, सर। sir. पॉइंट नंबर 4 उसमें होगा कंक्लूजन, समरी, होगा कि नहीं? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा, अभी मेरी बात को आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है ना? और आप लोगों को मैं क्या करने वाला हूं, बहुत क्लियर करने वाला हूं इंशाल्लाह, ठीक है? आज मैंने आप लोग को जो सबसे मुश्किल, अगर आप मैचिंग को सही परफॉर्म कर पाएंगे ना, तो बाकी आप लोग के लिए जो कंप्लीशन है एंड आइडेंटिफिकेशन है, दैट बिकम्स लाइक दिस फॉर यू ऑल। अब मेरी बात सुने, जो मैचिंग हेडिंग्स है, हेडिंग ये वाला, ठीक है, जो पहला वाला है, मैं यहां पे लिख देता हूं मैचिंग हेडिंग्स। अब मैचिंग हेडिंग्स को आप लोगों ने जहां पे ढूंढना है, पहला वाला टॉपिक सेंटेंस में ढूंढेंगे। किस चीज में? टॉपिक सेंटेंस, पहले वाले जुमले में। और या आप लोगों ने ढूंढना है टॉप इसे समरी में, कहां पे? इन दो जगहों पे आप लोग को ये पहला वाला जो मैचिंग हेडिंग के, आप लोग को जवाब कहां से मिलेगा? टॉपिक सेंटेंस से और समरी से, बीच में से नहीं। और समरी से। एग्जैक्टली अब मैचिंग जो है, मैचिंग इंफॉर्मेशन, इन्फो, तो इंफॉर्मेशन जो है ना, इसका मतलब क्या है? डिटेल। क्या है इसका? डिटेल।
तो आप मुझे खुद बताइए, डिटेल में हम कहां पे, पैराग्राफ की डिटेल हम कहां पे दे रहे हैं? एक्सप्लेनेशन एक्सेलेंट। हमने कहां पे ढूंढना है इसे? एक्सप्लेनेशन में। Explanation में। वेरी गुड, एक्सप्लेनेशन में और या Explanation। एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल। मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग हेडिंग का जो जवाब आपको मिलेगा टॉपिक सेंटेंस में और या समरी में। समझ रहे आप लोग? और जो ये मैचिंग इंफॉर्मेशन है, ये दूसरा वाला, इसका जवाब आप लोग को कहां पे मिलेगा? एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन में। आप लोग गलती ना करें, अगर आप टॉपिक सेंटेंस में ढूंढ, क्योंकि टॉपिक सेंटेंस एक पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करने वाला है। मेन आइडिया है यहां पर, क्या है? मेन आइडिया। वी रिप्रेजेंट मेन आइडिया। समझ रहे? क्योंकि आपसे मैचिंग हेडिंग मांग रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा, डिटेल नहीं मांग रहा। और इंफॉर्मेशन में क्या है? तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? डिटेल है कि नहीं है? तो भाई डिटेल हम पैराग्राफ के कहा कौन से पोर्शन में दे रहे हैं? डिटेल डेफिनेटली वी गिव दैट इन एग्जांपल एंड एक्सप्लेनेशन, नॉट इन टॉपिक सेंटेंस, नॉट इन समरी। यस सर। कौन कौन समझे मेरी बात को? Sir, me. गुड। मैं So to सर push, मैं that's good. That's good. We understand. Senga, So for sure, so really. alakano tol poishu jina ko tol poishu kana. यस यस सर। सर। Yes, sir. Za shukar de chi poishu. यस सर। Yes, sir. Good, good. Uza za batasto practically kham noro mus pe poyom kana. Sabar ka khada khumala yo 2% का karta saro को खा। अब आ जाए, मैंने आगे जाना है, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों के पास, आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले लेट मी कम टूवर्ड्स दिस स्लाइड। यार 10 बार बार एडमिट एडमिट 6 वेटिंग, ओके। टोल पर वेटिंग kira tanasi si taso stable net तक नहीं नो बेवदा मस्ती नहीं जबार बार तासो ऐड कोमा खजी उस गोरे। हे मेरी बात सुने, डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर हेडिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है? डिस्टिंग्विशिंग सिमिलर हेडिंग्स, 6 लॉजिकल स्प्लिट्स। हमारे पास कितने होंगे? 6 लॉजिकल स्प्लिट्स। मेरी बात सुने, अगर आप सवाल वहां पे है रीजंस के बारे में, किस चीज के बारे में? रीजंस। मेरी बात सुने, तो अब अगर टॉपिक सेंटेंस को रीड करें तो आपको नहीं पता चल रहा है कि इस पैराग्राफ में रीजंस अब यहां पे क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है। Exactly. तो इजीली आपने ये डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पैराग्राफ। देखिए मेरी बात सुने, राइटिंग में हमने भी पढ़ा था और मैं यहां पर दोबारा रिपीट करने वाला हूं कि एक पैराग्राफ हम जब लिखते हैं तो एक पैराग्राफ का मतलब है वन सिंगल आइडिया। अगर एक पैराग्राफ है तो उसमें सिर्फ काजेज हो सकते हैं, इफेक्ट नहीं हो सकते। अगर एक पैराग्राफ है तो उसमें सिर्फ इफेक्ट होंगे, काजेज नहीं होंगे। तो मतलब Yes. वहां पे अगर काजेज है, व्हाट, क्लियर, व्हाई इट हैपेंस, तो अब वहां पे आप लोगों ने क्या देखना है? व्हाई इट हैपेंस। तो इसके लिए सिनोनिम नहीं, अपने रीजंस देखना है कि वहां पे एक्सप्लेन क्या चीज हुआ होगा। रीजंस एक्सप्लेन हुए होंगे कि या मतलब आपको वहां पे व्हाई के लिए कोई सिनोनिम मिलेगा, बताइए मुझे। No reason. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। एंड इफेक्ट्स, तो इफेक्ट्स मतलब क्या है? व्हाट रिजल्ट्स, इसके असरात Yeah. क्या होंगे? रिजल्ट्स। मतलब मैं अगर ये कहूं कि लोग शहरों में क्यों, मतलब ज्यादातर नौजवान शहरों में आ रहे, क्यों क्यों शहरों में आ रहे, तो मतलब क्या, मैंने रीजन ढूंढने ना कि यार वहां पे Yes, sir. गांव में क्या नहीं है, लेक ऑफ एजुकेशन, लेक ऑफ फैसिलिटीज कम है, इस वजह से आ रहे, हेल्थ इश्यू एक्सेट्रा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो मतलब क्या होगा? सिटीज जो है वो ओवर क्राउडेड, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर भी बर्डन, हाउसिंग का जो मतलब रेंट है वो भी ज्यादा हो जाएगा। एम आई राइट? तो अगर इसमें ये Yes. इफेक्ट हो रहा है और यहां पे रीजन है, तो दोनों को सही तरीके से आप डिफरेंशिएट करें। अब हमारे पास जनरल एंड स्पेसिफिक, अब नहीं ये देखना है मेरी बात सुने, इस पॉइंट को आप लोगों ने गौर से सुनना है, ठीक है ना? क्या जो ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है वो जनरल ब्रॉड क्लेम है और या सिंगल केस है? मैं ब्रॉड और सिंगल का मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? ब्रॉड का मतलब यह है, इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को ले लूं, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अगर मैं टारगेट करना चाहता हूं तो यह ब्रॉड है कि सिंगल केस है? Broad. एक्सेलेंट। Broad अगर है। मैं एक सिंगल एम्प्लॉय को टारगेट करना चाहता हूं तो ये क्या है? इट्स अ सिंगल केस। Specific. सिंगल होगा। तो वेरी गुड, आप लोगों ने ये देखना है कि आप लोगों से ऑप्शन में, आप लोगों से एक ऑप्शन है, एक पैराग्राफ ब्रॉड डिस्कशन कर रहा है, एक पैराग्राफ आपका मतलब एक सिंगल केस को डिस्कस कर रहा है, और आपसे सवाल में वहां पे सिंगल केस पूछा जा रहा है। सो आर यू सपोज टू क्लिक ऑन द ब्रॉड टर्म और सिंगल केस? डेफिनेटली सिंगल केस।
समझ रहे आप लोग? आप लोग के Yes, पास sir. पैराग्राफ्स है, प्रॉब्लम मतलब सवाल में आपसे प्रॉब्लम मतलब वो सवाल में जो ऑप्शन है वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आप सोल्यूशन वाला पैराग्राफ सेलेक्ट कर सकते हैं? No, No, sir. sir. No, एक्सेलेंट। sir. तो आप लोग को ये डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा पैराग्राफ प्रॉब्लम के बारे में, कौन सा पैराग्राफ सोल्यूशन। तो प्रॉब्लम के लिए वहां पे क्या लिखा होगा? Solution. डिफिकल्टीज। और सोल्यूशन के लिए रेमेडी दिया होगा। Remedy. वहां पे मतलब मैंने बार बार ये चीज कह रहा हूं कि वहां पे सननम मेननम आपका फेल होने वाले हैं, ठीक है ना? सननम वोंट वर्क। आप लोग का जो आइडिया है, कंटेक्चुअल मीनिंग है, दैट विल रियली सेव यू। अब यहां पे देखिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अपने ये देखना है कि ऑप्शन जो है 3 पैराग्राफ है, एक पास्ट के बारे में, एक प्रेजेंट के बारे में, एक फ्यूचर के बारे में, और आपसे सवाल में फ्यूचर के बारे में पूछा जा रहा है। होप है वहां पर। होप फ्यूचर के लिए आ रहा है कि प्रेजेंट के लिए? Hope future. फ्यूचर। फ्यूचर के अगर लिए आपके है। साथ मतलब कुछ पास्ट में हिस्ट्री है, 21st सेंचुरी है, तो पास्ट के बारे में आप क्लिक करेंगे कि प्रेजेंट वाला पैराग्राफ, डेफिनेटली पास्ट बारे में। Past वाला. वेरी गुड। Past पॉजिटिव के. वर्सेस नेगेटिव, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। आप लोग ने ये देखना है कि ये इसके बारे में पॉजिटिव चीज के बारे में बात हो रही है कि नेगेटिव के बारे में, ठीक है ना? मतलब या इसका negative. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब क्या है कि यहाँ पे अप्रूविंग है, डिसअप्रूविंग है, या न्यूट्रल है। तीनों में आप लोगों ने क्या करना है? डिफरेंशिएट। मतलब एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं, ये न्यूट्रल है। और उसके बाद आप लोगों ने आर्गुमेंट वर्सेस काउंटर आर्गुमेंट, ऑथर Sir, क्लेम अगर ये वर्सेस अब ऑथर ऑब्जेक्शन। समझ रहे? एक पैराग्राफ में वो ऑब्जेक्ट Yes, कर रहे हैं, एक पैराग्राफ में वो क्या क्लेम कर रहे हैं। तो यू मेक श्योर, क्लियर? सो व्हेन टू headings look almost identical, read them aloud. The small difference, clear, is the answer. समझ रहे आप लोग? sir, as you said कि positive versus negative में approving और disapproving आता है, और तो neutral किस चीज के बारे में आएगा सर? तो दोनों अगर है, वो मतलब न्यूट्रल है, neutral हो। मतलब वो ना एग्री कर रहे ना डिसएग्री कर रहे। सर ये पॉजिटिव नेगेटिव की एग्जांपल जरा दे मैं पॉजिटिव अप्रूविंग के क्या है? फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि आइल्स रीडिंग सबसे आसान है, आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि जो टीचर कह रहे हैं वो बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूं, आप एग्री कर रहे हैं। आप मैं कह रहा हूं कि आइल्स रीडिंग बहुत आसान है, आप वहां पे क्या कह रहे हैं कि नहीं, जो टीचर कह रहा है ना ये ऐसा नहीं है। और आप तीसरा बंदा जो है वो क्या कह रहे हैं? तीसरा बंदा कह रहे हैं शायद के मतलब ठीक भी कह रहे हो, शायद कि ठीक ना भी कह रहे हो, तो न्यूट्रल हुआ ना। मतलब वो ना एग्री करे ना डिसएग्री करे पैराग्राफ में। अभी क्लियर हुआ? Excuse me, sir. यस प्लीज। Excuse me, sir. यस प्लीज। सर ये आर्ग्यू और वर्सेस काउंटर आर्ग्यू कुछ पैराग्राफ में ज्यादातर साइंटिस्ट के बारे में आता है और हमेशा आर्ग्यू वर्सेस काउंटर आर्ग्यू के बीच में हमें पता चलता है। ये लास्ट जो है ना, लास्ट तो ये जो लास्ट 3 है, ये वाला और ये जो मतलब जो पैराग्राफ ओपिनियन बेस्ड हो, किस चीज पर बेस्ड ओपिनियन, तो उसमें फिर ये दोनों काम कर सकते हैं। ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ में ओपिनियन बेस्ड में या ओपिनियन बेस्ड पैराग्राफ में ये काम कर सकते हैं। अब ये काज एंड इफेक्ट तो ओपिनियन बेस्ड तो नहीं है ना, प्रॉब्लम सोल्यूशन ओपिनियन नहीं है, जनरल वर्सेस स्पेक ओपिनियन नहीं है, प्रेजेंट पास्ट ये ओपिनियन नहीं है, सिर्फ ये ओपिनियन है। सर ये जो 6 पॉइंट्स बताए गए हैं ये पैराग्राफ से रिलेटेड है कि इन 6 कैटेगरीज में आ सकते हैं? देखिए जी, एक पैराग्राफ जो हो, मतलब एक पैराग्राफ है उसमें प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही हो, ठीक है। तो दूसरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में होगा? Solution होगा सर। सोल्यूशन होगा डेफिनेटली। अगर एक पैराग्राफ बात हो रही है वहां पे काजेस, तो दूसरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में होगा? सोल्यूशन। इफेक्ट। तो मतलब दोनों एक पैराग्राफ में तो नहीं आ सकते ना। यस हम अब जब प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे तो आप लोग को समझ आएगी, डोंट यू वरी, आई एम गोना गाइड यू। Yes, sir. लेट्स टेक सम ऑफ द एग्जांपल्स, ठीक है? मैं आप लोग को अभी समझाने की कोशिश करता हूं, आप सब खुद समझेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात सुने। अब आप लोग के पास कुछ सपोज हेडिंग्स है, कैन यू सी दोस हेडिंग्स? ऊपर आपके Yeah. पास कुछ हेडिंग्स है, ठीक है? हेडिंग्स को आप लोगों ने सिर्फ गो थ्रू कर, बाद में मैं आप लोग को प्रैक्टिकली मतलब अब मैंने सिर्फ आप लोग का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है, ठीक है? आप लोग ये रीड करें जो पहला वाला है, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, क्लियर? ये पैराग्राफ है मेरे पास, और मेरे पास यहां पे आप सबसे पहले हमने थोड़ा ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को समझने हैं, ठीक है? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। यहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही है? इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ स्लीप लॉस। कॉस्ट है ना, रिलेटेड टू व्हाट? प्राइस। अब यहां पे क्या है? वाई। वाई। यहां पे क्या है? हाउ। यहां पे कॉमन मिसकंसेप्शन है। यहां पे क्या है? डेंजर्स, नेगेटिव। स्लीप पैटर्न्स अक्रॉस कल्चर्स। समझ रहे आप लोग? ये 4 नंबर
common misconception about मतलब sleep. अभी हमने क्या करना है, आप लोगों ने अभी पहले, मतलब ये मैचिंग हेडिंग्स है, तो मैंने क्या कहा था कि व्हाट यू कैन डू, कि पहला लाइन And last one. लास्ट वन, डायरेक्टली आप Last लोगों ने इन one. दोनों पे जाना है। बीच में जो एग्जाम एक्सप्लेनेशन उससे आप लोग का मैचिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे? अब यहां पे देखिए, मेनी एडल्ट्स Yes. बिलीव दे कांट कैच अप ऑन स्लीप ड्यूरिंग द वीकेंड, और तो मतलब एक ये हुआ, Misconception आ रहा है। मतलब अभी अभी आप लोग खुद देखें यहां पे, मतलब क्या है, नंबर वन पॉइंट नंबर वन, मतलब नंबर वन ये पॉइंट आइडिया हुआ कि नहीं? द सेकेंड वन, दैट ओल्डर पीपल नीड लेस रेस्ट। कितने आइडियाज हमारे पास हुए? अब दो हुए कि नहीं? तो वेरी गुड। True. और इसके पास, इसके इन दोनों आइडिया को, ये आगे वाला जो सेंटेंस है ये क्या कह रहा है? रिसर्च नाउ शोज बोथ बिलीव्स टू बी फॉल्स। तो अब मुझे बताए, तो अब यहां पे तो आपको कुछ भी आइडियाज का जिक्र है? पहले लाइन में कोई आइडिया के बारे में जिक्र है? No. नहीं है ना? No, sir. लेकिन आइडियाज का आपको कहां से पता चल रहा है कि ये आइडियाज है? दीज आर आइडियाज। Research for Sorry. both. The second. वो सर यहाँ पे बिलीव कर लेते नंबर वन, इट्स अबाउट व्हाट? मेनी एडल्ट्स। किस चीज से रिलेटेड है? कैन कैच अप ऑन स्लीप ड्यूरिंग वीकेंड, एक आइडिया हुआ। दे बिलीव, कैन, ये कांट नहीं है, कैन। और द सेकेंड वन, दैट ओल्डर, और आया कि नहीं सेकेंड आइडिया, और ओल्डर पीपल नीड लेस रेस्ट, मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब जो एजेड लोग हैं उन्हें रेस्ट की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो फिर इसने क्या कहा है? रिसर्च नाउ शोज बोथ बिलीव्स टू बी फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब क्या है? नेगेटिव। तो डोंट यू थिंक लाइक दे टॉक अबाउट कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट स्लीप? Misconception. तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हुआ? 4 सर। एक्सेलेंट। Four. अब आप देखिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट टू, क्लियर, लिस्ट टू पॉपुलर बिलीव्स, टू पॉपुलर बिलीव्स है ना। सेकंड टेंस सेंटेंस कॉल्स बोथ बिलीव्स फॉल्स, इसको और जो रिजेक्ट आखिरी किया वाला है, क्लियर, वाइडली हेल्ड assumptions despite decades of country evidence, these widely held assumptions persist। वहां पे तो मतलब कुछ जिक्र नहीं है दैट्स वाइडली हेल्ड assumptions के बारे में। सो पैराग्राफ इज नॉट अबाउट एजिंग, मतलब इज दैट पैराग्राफ अबाउट एजिंग? क्लियर? इट्स नॉट अबाउट Female मेमोरी, age के बारे में. it's not about cost, it's not about reason, so it that straight away we can go for what? That the correct Misconception. answer is misconception। अब यहां पे आ जाए द नेक्स्ट वन। एक्सक्यूज मी सर, सर जी। ये तो पैराग्राफ आप वो छोटे हैं ना सर, लेकिन उसमें बड़े लेंथी आते हैं। ये तो बहुत छोटा था सर। وشيريار لك خمي بريدة أول خدي بدي أول زتا بقى ABC بوي كم كتاتا زر بورا وقت جملة تو خيمة ओके सर ओके। لك صبر كوا كان شيريار لك جورا زدي بويم كان بي practical داغتا رازو كان next خا زكم داس تختما تبا وز بوري خا